स्टोर करोगे तो वहां पे वर्चुअल एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो हाउ टू क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट? तो यहाँ पे आप कमांड दे सकते हो वर्चुअल env space virtual environment name। It will create a virtual environment for you. Or what you can do is you can use the built-in module provided by Python, that is venv. So py hyphen m venv followed by virtual environment name. So it will create virtual environment for you. If you are using PyCharm, it automatically creates a virtual environment for you. So you don't need to create it explicitly. But if you are working on command line interpreter, then you will have to create the virtual environment by yourself. अगर आप वहां पे वर्चुअल एनवायरनमेंट खुद से क्रिएट नहीं करोगे तो वो वर्चुअल एनवायरनमेंट वहां पे यूज, मतलब आपके सारे जो डिपेंडेंसीज है वो सिस्टम से वहां पे लिए जाएंगे। मीन्स इफ यू हैव एनी library which is corrupted, then that library will not function properly in that project. So that's why we have to create the virtual environment. So अगर आप ये कमांड एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपके लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके देगी। तो अगर हम हमारे प्रोजेक्ट में जाके देखते हैं, तो यहाँ पे फोल्डर में जाके देखते हैं, सो यू कैन सी देयर इज अ वर्चुअल एनवायरनमेंट फोल्डर। So right now, in order to activate the virtual environment, we need to execute the command। तो आप अगर विंडोज का cmd यूज कर रहे हैं, देन द कमांड इज venv बैकवर्ड स्लैश scripts बैकवर्ड स्लैश activate। So as a Python developer, you should know these commands: how to activate the virtual environment, how to create the virtual environment, how to deactivate the virtual environment. So you should know all these commands। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप विंडोज का cmd यूज कर रहे हैं तो ये कमांड यहाँ पे वर्क करेगा। बट आर वी वर्किंग ऑन विंडोज cmd राइट नाउ? यहाँ पे नहीं है, ये हमारा गिट का CLI है। एंड गिट का CLI डिजाइन किया गया है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड का यूज करके हमें यहाँ पे हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना पड़ेगा। So if you are working on Linux or Mac operating system, then the command is different to activate the virtual environment, and that command is store, and then you have to provide the path of the virtual environment। So यहाँ पे आपको venv forward slash script forward slash activate। So this command is used to activate the virtual environment in Linux or Mac OS, and because Git CLI is built on Linux operating system, so all the Linux commands are सपोर्टेड है। तो जैसे हम यहाँ पे ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर पैरेंथेसिस में आपको venv लिख के आ रहा है। मीन्स आवर वर्चुअल एनवायरनमेंट इज activated। If you want to deactivate this virtual environment, you can simply execute the command deactivate, it will deactivate the virtual environment। So now that we have activated this virtual environment, in order to create the Django project, what we can do is we can install the dependency pip install Django, and it will install this dependency in your virtual environment। ये आप सब लोगों को पता है, राइट? तो जैसे हमारा ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाता है, हम यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, स्टार्ट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हम लेते हैं लेट्स से डेमो प्रोजेक्ट। तो अब अगर हम यहाँ पे ls-la करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो डॉट गिट फोल्डर है, डेमो प्रोजेक्ट फोल्डर है आपके पास, एंड venv फोल्डर है, venv वर्चुअल एनवायरनमेंट डेमो प्रोजेक्ट इज द प्रोजेक्ट, एंड डॉट गिट इज द डायरेक्टरी which has version control system enabled for you। सो अब अगर हम यहाँ पे cd डेमो प्रोजेक्ट करते हैं, py manage.py run सर्वर करते हैं, तो वी शुड बी एबल टू सी द डिफॉल्ट पेज ऑफ Django। So you can see, we can see the default page of Django। ये सब सब लोगों को पता है, सब लोगों ने अभी तक
ये एग्जीक्यूशन यहाँ तक किया हुआ है, राइट? So now let's terminate this server. So now that we have created this project, and now what I want to do is I want to host this project on GitHub. I want to host this project on GitHub. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे GitHub के साथ मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और जब हम लोकल रिपोजिटरी से GitHub के साथ अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो वहां पे आपके लिए कोई ना कोई रिपोजिटरी अवेलेबल होना चाहिए जिसके साथ आप यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको आपके फ्रेंड को कॉल करना है, तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? अगर आपको आपके फ्रेंड को कॉल करना है तो रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिकली दोनों के पास फोन होने चाहिए, और दोनों के फोन में सिम कार्ड होना चाहिए, वो भी एक्टिव। तभी जाके आप आपके फ्रेंड को कॉल कर सकते हो, राइट? तो वैसे ही अगर आपको आपके लोकल सिस्टम से गिटहब रिपोजिटरी के साथ अगर आपको इंटरेक्शन करना है, तो यू शुड हैव अ गिटहब रिपोजिटरी, राइट? सो यू शुड हैव अ गिटहब रिपोजिटरी। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो गिटहब पे जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट अ रिपोजिटरी ओवर हियर। तो यहाँ पे जब भी आप रिमोट रिपोजिटरी क्रिएट करना चाहते हो, जितने भी आपके गिटहब रिपोजिटरीज होते हैं, उनको हम रिमोट रिपोजिटरीज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको हम रिमोट रिपोजिटरीज? बिकॉज जब भी आप गिटहब पे कोई रिपोजिटरी क्रिएट करोगे या होस्ट करोगे, दैट रिपोजिटरी इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट फिजिकली इन योर सिस्टम। वो एक रिमोट लोकेशन पे होने वाला है। दैट इज व्हाई वी कॉल दोज रिपोजिटरीज एज रिमोट रिपोजिटरी, because those repositories doesn't present in your system physically, so that's why we call them as a remote repository. So अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? एक remote repository create करने वाले हैं। So in order to create the remote repository, if you are going to create the repository for the first time, you are going to see a button with create repository. But if you already have created GitHub repositories, then you are going to see a button with the name new. So अगर आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये यूआई दिखेगा, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी बटन दिखेगा, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यही सेम यूआई दिखने वाला है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या प्रोवाइड करना है? तो यू हैव टू प्रोवाइड द रिपोजिटरी नेम एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस रिपोजिटरी नेम इज यूनिक। सो अब हम हमारा यहाँ पे रिपोजिटरी नेम प्रोवाइड करेंगे, विच इज गोइंग टू बी डे 21/06/24। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये आप नेम आपके लिए अवेलेबल है। सो वी आर क्रिएटिंग अ रिमोट रिपोजिटरी गिटहब रिपोजिटरी विद द नेम डे 21/06/24। अब यहाँ पे जब आप रिमोट रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन ये ऑप्शनल होता है। इफ यू वांट टू प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन यू कैन, इफ यू डोंट वांट यू कैन सिंपली लीव इट ब्लैंक। अब उसके बाद यहाँ पे मेन चीज आता है कि आप किस टाइप का रिपोजिटरी क्रिएट करना चाहते हो, पब्लिक या प्राइवेट। If you are going to create a project for an organization or for a client, then you will have to create a private repository. Why? Because your source code shouldn't be available for any other users apart from the people who are working on it, right? और अगर आप जैसे कि इमेजिन कीजिए, अगर आप एजुकेशनल पर्पस के लिए या कोई ट्यूटोरियल के लिए अगर आप रिपोजिटरीज क्रिएट करना चाहते हो, इन दिस केस यू कैन क्रिएट दोज रिपोजिटरीज एज पब्लिक रिपोजिटरी। तो पब्लिक रिपोजिटरी क्या होता है? So public repository is a repository which is visible to all the users, whether that user is authenticated user or an unauthenticated user। मतलब उसका गिटहब पे अकाउंट हो या ना हो, उसके लिए आपका ये रिपोजिटरी विजिबल होगा, अगर आपका रिपोजिटरी पब्लिक रिपोजिटरी है तो। बट कोई भी यूजर उस रिपोजिटरी में चेंजेस नहीं कर सकता। मतलब अगर मैंने ये रिपोजिटरी पब्लिक रिपोजिटरी किया है, तो आप सब लोगों के लिए ये रिपोजिटरी विजिबल होगा। इफ यू get the link of this repository, if you go to the browser, enter the URL,
you will be able to see the content of this repository, but you won't be able to modify the content of this repository because you will not have that access right. Right? The same way से यहाँ पे जब भी आप कोई भी पब्लिक रिपोजिटरी क्रिएट करोगे तो ये सबके लिए विजिबल होगा, बट इसमें कौन मॉडिफिकेशन कर सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द ओनर of that repository. So the owner gives the permissions to the users so that the users can collaborate with that repository or on that project. तो अगर आप मल्टीपल लोगों को एक साथ किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना है, so only one person is going to create the repository and that repository is going to be used for project development. In that case, other users are going to be collaborators for that repository, means they can modify the changes. But if you are not collaborator for that repository, then you won't be able to make changes in that repository. You will only be able to see the contents of that repository. और अगर आप यहाँ पे प्राइवेट रिपोजिटरी क्रिएट करते हो, मीन्स this repository is only going to be visible for the users who has the access rights to change the content. मतलब जो उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में कोलैबोरेटर्स ऐड किए गए हैं, उन्हीं को वो एक्सेस राइट होगा कि वो उसको देख भी सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि इमेजिन करो कि आपके घर में कोई टीवी रखा हुआ है, तो आपके विलेज का कोई भी पर्सन या आपके सिटी का कोई भी पर्सन आके उस टीवी को देख सकता है क्या? नहीं देख सकता है। क्यों? बिकॉज दैट इज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ, राइट? So who can see the TV? Who can watch the TV? The people who lives inside that house. तो सेम वे से अगर आपका प्राइवेट रिपोजिटरी है तो जिसके पास एक्सेस राइट है वो ही उसको देख भी सकता है और वो ही उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। समझ में आया? सो फॉर नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द पब्लिक रिपोजिटरी। सो फॉर नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द पब्लिक रिपोजिटरी। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आपको इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना है, इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के लिए अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना है, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इनिशियलाइज अ रीडमी फाइल इनसाइड इट। इट इज अ मार्कडाउन फाइल विच इज यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटिंग द रिपोजिटरी। अगर आपको किसी भी रिपोजिटरी के लिए कोई डिस्क्रिप्शन देना है, आपको वहां पे इमेजिन कीजिए कि आपके कुछ स्टेप्स है जो कि अगर आपको कोई रिपोजिटरी को कोई अगर यूज करता है तो उसके लिए आपको बताना है कि प्रोजेक्ट को अगर आपको रन करना है तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो अगर आपको वैसा कोई डिस्क्रिप्शन या आपके प्रोजेक्ट के बारे में आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाना है जो कि सबके लिए विजिबल होगा, सो इन दैट केस यू कैन क्रिएट अ रीडमी फाइल। So it totally depends on you whether you want to initialize the repository with a README file or without README file. So if you check this box, it is going to initialize this repository with a README file. Means it will have one commit at the time of repository creation. तो जैसे आपका repository create होगा तब वहां पे आपको एक commit दिखेगा. But for now we are not going to add this README file by here we will add that README file later. अब उसके बाद जब भी आप कोई भी जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो उसमें कुछ सिक्योर इंफॉर्मेशन होती है। जैसे अगर आपने ईमेल कॉन्फ़िगरेशन किए हैं या अगर आप वहां पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर रहे हो तो उसके अगर आपके क्रेडेंशियल्स होंगे, या अगर आप वहां पे कुछ सिक्योर इंफॉर्मेशन है जैसे कि आपके एप्लीकेशन का सीक्रेट की, इसका यूज करके हैकर्स आपके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ऐसी जो सिक्योर इंफॉर्मेशन है, अगर आपको उस सिक्योर इंफॉर्मेशन को ट्रैक नहीं करना है, मींस जब भी आप गिटहब पे इन कंटेंट को होस्ट करोगे तो आपकी सिक्योर इंफॉर्मेशन जो है गिटहब वहां पे होस्ट नहीं करेगा। मींस आपके जो भी लोकल रिपोजिटरी से जब आप कंटेंट गिटहब पे होस्ट करोगे तो वो कंटेंट जो आपके सिक्योर कंटेंट्स है वो गिटहब पे होस्ट नहीं होने चाहिए, वहां पे डिस्प्ले नहीं होने चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, गिट इग्नोर फाइल क्रिएट करते हैं। तो गिट इग्नोर फाइल में जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हम लिस्ट डाउन करेंगे तो गिट रिपोजिटरी इज गोइंग टू इग्नोर दोज फाइल्स। इट इज नॉट गोइंग टू चेक वेदर दीज फाइल्स हैव बीन
modified or not. It is simply going to ignore this file. So आपको ये git ignore फाइल प्रोवाइड करके दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हो कि आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे git ignore फाइल सिलेक्ट करना होता है, and it is also optional for you. You can keep it as none, or you can here see all these languages. For these languages, you can create the git ignore file. So अगर आप यहाँ पे Python का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, you can select the Python, so it will create a git ignore file for the Python application. If you are going to create a Java application, then here you can choose the git ignore file template of Java, which will create a git ignore file for Java application. So this way you can choose the template, or what you can do is you can simply keep it as none. So for now, we are going to keep this git ignore template as none. तो उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, क्रिएट रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक करना है। सो जैसे हम यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक करेंगे, सो राइट नाउ our remote repository doesn't have any branch, any source code. So what it is showing is that it is showing us the URL of this Git repository. So ये URL आपको दिख रहा है. Simply what you have to do is you have to copy this URL. So you have to copy this URL, and in order to make the connection of local repository with GitHub repository, we are going to use the git remote command. So what is the use of git remote command? So git remote command is used to create a new connection with the remote repository, list down all the connections that have been made with this local repository, rename an existing connection, and delete an existing connection. So it is used to create a connection, list down all the connections, modify a connection, and delete a connection. So right now, if we execute the command git remote, you can see it is going to show you blank output. Why? Because right now we do not have any connection established with remote repository. So here you can see it is not showing us any list. So जब आप यहाँ पे git remote command execute करोगे without any argument, then it is going to show you all the remote connections established with this local repository. But right now, what we want to do is we want to create a new connection. So for that, we have to use this git remote command with the argument add. So which is going to create a new connection. So whenever you are going to create a new connection, you have to provide a connection name. So you have to provide a connection name. So for the simplicity, we are going to provide the connection name as origin. And then you have to provide the URL of GitHub repository. आपका जो remote repository है जिसके साथ आपको ये connection establish करना है, आपको उसका URL यहाँ पे provide करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ये URL provide करके इस command को execute करोगे, now if we execute the git remote command, you can see there is one connection established with the name origin. दिख रहा है? So now we have created a connection with a GitHub repository. Now this local Git repository can interact with the remote repository. But in order to host the source code of local repository onto GitHub repository, you should have some commits in your local repository, right? अगर आपके लोकल रिपोजिटरी में कुछ कमिट्स हो गए तो ही आप उनको क्या कर सकते हो, होस्ट कर सकते हो आपके गिटहब रिपोजिटरी। सब अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं गिट स्टेटस, तो वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ जेंगो प्रोजेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करता हूँ, सो नाउ हियर you can see it is showing you the current folder with, sorry, cd.exe. So now if you check the git status, here you can see
there is a demo project and virtual environment folder created over here, क्योंकि हमारा रिपोजिटरी कौन सा है, डे 210624। जब हम कोड पूरा पुश करेंगे तो हमें ये डेमो प्रोजेक्ट इसको पुश करना पड़ेगा, राइट। ये पूरा सोर्स कोड हमें वहां पे पुश करना पड़ेगा, तब जाके हमारे सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स वहां पे ऐड हो जाएंगे। सो राइट नाउ अगर मैं यहाँ पे गिट ऐड करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे गिट ऐड करता हूँ तो अगर इस फोल्डर को ओपन विथ just open this with files। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है, जिसमें हमारे सारे कंटेंट्स आपको दिख रहे हैं। So right now here you can see all these files are shown in red color। सारे फाइल्स आपको रेड कलर में दिख रहे हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट को अगर आप यहाँ पे देखते हो, आपको ये भी फाइल सारे रेड कलर में दिख रहे हैं। अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, अब आपको सिंपली क्या करना है कि आपका ये जो पाइचाम है, पाइचाम के फाइल्स में जाना है, फिर आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको प्लगइन्स दिखेगा, प्लगइन्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करोगे यू विल सी दिस विंडो। आपको क्या करना है, ये अलग अलग इग्नोर फाइल्स दिखने वाले हैं, उसमें से हमारा कौन सा है, हम गिट के साथ वर्क कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ गिट इग्नोर फाइल। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड यू हैव टू सिलेक्ट द टेम्पलेट। सो यहाँ पे पाइथन सर्च कीजिए, सिलेक्ट द पाइथन एंड जनरेट दिस टेम्पलेट। जैसे आप यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करोगे, ये आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको ऐड करना है नहीं करना है, सिंपली कैंसिल कीजिए। ठीक है, अभी के लिए हम उसको कैंसिल कर। तो राइट नाउ हियर यू कैन सी गिट इग्नोर आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो वी हैव एडेड दिस गिट इग्नोर फाइल। सो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इसमें आपको ये सारा सोर्स कोड दिखेगा। ये सोर्स कोड हमने खुद से अभी क्रिएट किया है क्या, नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पे उसने लिस्ट डाउन किए हैं। पाई कैशे है, देन उसके बाद यहाँ पे बिल, ये जो आपको जिसके आगे फॉरवर्ड स्लैश दिख रहा है, ये सारे डायरेक्टरीज है। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे यू विल बी एबल टू सी वर्चुअल एनवायरनमेंट फोल्डर दिख रहा है। That is why this virtual environment folder is shown in yellow color right now, because now Git repository knows we don't need to track this virtual environment folder. Along with that, you can see there is a file dbSQLite which is shown in yellow color. What this means? It is not going to track the database file as well, right? तो यहाँ तक क्लियर है कैसे इग्नोर फाइल क्रिएट करना है।
अब आपने यहाँ पे ये इग्नोर फाइल क्रिएट कर लिया। नाउ लेट्स हेड बैक टू द गिट बैश। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, git add star, because you can see all these files are shown in red color, means right now these files are not being tracked by git repository. So in order to track them or in order to save them, we must have to add them in the staging area. So for that we are going to execute the command git add star. एक बार अगर आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, आप उसको ओपन करो पाइथन में, आपको जो फंक्शनलिटी करनी है पाइथन में आप कर लो। उसके बाद यहाँ पे आके गिट एड स्टार्ट कर लो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपको बता रहा है कि द फॉलोइंग पाथ्स आर इग्नोर बाय वन ऑफ योर डॉट गिट इग्नोर फाइल। ये आपको बता रहा है कि कौन से फाइल्स को वो इग्नोर कर रहा है, तो वीएम। तो अगर हम अभी यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो आप देख सकते हो जितने भी हमारे फाइल्स जो कि रेड में दिख रहे थे, वो सारे फाइल्स यहाँ पे अब ट्रैक हो रहे हैं। मतलब वो सारे फाइल्स आपके स्टेजिंग एरिया में ऐड हो चुके हैं, बट स्टिल दिस गिट इग्नोर फाइल इज नॉट एडेड इन द स्टेजिंग एरिया। तो बाय डिफॉल्ट गिट क्या करता है, गिट इग्नोर फाइल को स्टेजिंग एरिया में ऐड नहीं करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसको एक्सप्लिसिटली आपको स्टेजिंग एरिया में ऐड करना होता है। सो उसके लिए हम यहाँ पे डॉट गिट इग्नोर, तो यहाँ पे हम git add डॉट गिट इग्नोर करेंगे। सो नाउ जैसे हम ये कमांड एंटर करेंगे, नाउ यू कैन सी दिस गिट इग्नोर फाइल इज आल्सो बीइंग ट्रैक्ड बाय गिट रिपोजिटरी। तो अब हमने हमारे जो भी कंटेंट हमें हमारे लोकल रिपोजिटरी में सेव करने हैं, वो सारे कंटेंट हमने स्टेजिंग एरिया में अभी लाए हैं। सो नाउ व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू सेव दी चेंजेस इनटू द गिटहब रिपोजिटरी। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गिट कमिट हाइफन एम, और उसके बाद हम यहाँ पे हमारा मैसेज देंगे इनिशियल कमिट। तो जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे, यू कैन सी इट हैज क्रिएटेड 7 फाइल। It has created 7 files, means it has created one version which has 7 files in it. So अगर हम अब यहाँ पे git log करते हैं, you can see there is one commit in our local git repository. ये आप सब लोगों ने कमिट तक किया हुआ है, git add git commit किया हुआ है। हमने बस चेंज क्या किया है, हमने एक रिमोट कनेक्शन वहां पे ऐड किया हुआ है। वी हैव जस्ट यूज दिस git remote command। अब आप सब लोगों को पता है कि हमारा रिमोट कनेक्शन ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुका है। अब हमारे पास हमारा सोर्स कोड है जो कि हमने हमारे लोकल रिपोजिटरी में सेव किया है। अब हमें क्या करना है कि हमारे लोकल रिपोजिटरी में हमने जितने भी कमिट किए हैं, वो सारे कमिट्स मुझे मेरे गिटहब रिपोजिटरी पे होस्ट करने हैं। अब मुझे क्या करना है, मेरे लोकल रिपोजिटरी के जितने भी कमिट्स हैं, वो कमिट्स मुझे मेरे रिमोट रिपोजिटरी पे होस्ट करने, गिटहब रिपोजिटरी पे होस्ट करने। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे git push कमांड का यूज करना होता है। सो फॉर दैट यू हैव टू यूज द git push कमांड। सो git push कमांड इज यूज्ड टू push the commits of your local github, sorry, local git repository onto remote repository or GitHub repository. So if you want to push the commits of local repository onto GitHub repository, then you have to use the git push command. तो यहाँ पे जब हम git push कमांड का यूज करेंगे, तो अब हमें यहाँ पे बताना होता है कि हमें कौन से रिपोजिटरी पे ये कंटेंट को पुश करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कनेक्शन नेम का यूज करेंगे। तो हमने कनेक्शन नेम क्या दिया था, origin. So we have to provide the connection name as origin। और अब यहाँ पे अगर हमें किसी स्पेसिफिक, अगर हमें यहाँ पे किसी स्पेसिफिक ब्रांच के कंटेंट अगर पुश करने हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपको मास्टर लिखा हुआ आ रहा है, दैट इज अ ब्रांच फॉर यू, दैट इज अ ब्रांच विच इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय योर लोकल गिट रिपोजिटरी। तो आपका जो गिट रिपोजिटरी का ये जो मास्टर ब्रांच है, वही सेम ब्रांच हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। सो अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इफ यू आर गोइंग टू पुश द कंटेंट ऑफ लोकल रिपोजिटरी ऑन टू
remote repository for the first time, then you have to authorize this application. So in order to interact with GitHub repositories, whichever platform you are going to use, whether you are going to use Git Bash, whether you are going to use PyCharm, whether you are going to use VS Code or any other tool, you have to first authorize these applications. Means you have to tell the GitHub that you are the owner who is going to be using these applications. So GitHub will allow these applications to modify the content of your GitHub repositories. अगर आपने इन एप्लीकेशंस को ऑथोराइज नहीं किया, अगर आपने इन एप्लीकेशंस को ऑथोराइज नहीं किया, मींस अगर मैं मेरे गिटहब पे जाता हूँ, यहाँ पे इफ आई ओपन दिस सेटिंग्स, तो अब मेरे पास यहाँ पे एप्लीकेशंस में जाने के बाद आप देख सकते हो ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक गिट गार्डियन एप्लीकेशन ऑथोराइज है। यहाँ पे ऑथोराइज टैब में आप देख सकते हो, यहाँ पे गिट क्रेडेंशियल मैनेजर मेरे पास ऑथोराइज है, गिटहब फॉर वीएस कोड मेरे पास ऑथोराइज है, जेटब्रेन्स आईडी इंटीग्रेशन मेरे पास यहाँ पे ऑथोराइज है। मींस जेटब्रेन्स आईडी इंटीग्रेशन फॉर पाइचार्म, गिटहब फॉर वीएस कोड, सर थोड़ा धीरे धीरे बताइए। गिट क्रेडेंशियल मैनेजर फॉर your git bash. So now what we want to do is we want to authorize this application. So first of all, what I am going to do is I will revoke the access of this git credential manager. आपके पास ये नहीं है, इसलिए आपको ये चीजें करनी नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बस बता रहा हूँ कि हाउ यू कैन authorize this application. तो यहाँ पे इस मैंने अब यहाँ पे गेट क्रेडेंशियल मैनेजर यहाँ पे निकाल दिया है। तो अब अगर मैं यहाँ पे git push origin master करता हूँ, so first time it is going to give me an error because right now I do not have this authentication. अब अगर मैं फिर से git push origin master करता हूँ, तो now you have to simply wait for some time until there is a pop-up shown in the taskbar. So यहाँ पे आपको दिख रहा है pop-up। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि it is going whenever you are going to click on this sign in with your browser, it is going to open the GitHub in your default browser. So make sure that you have logged in into your default browser. So अब जैसे मैं यहाँ पे साइन इन विथ योर ब्राउजर पे क्लिक करूंगा, तो ये मुझे क्या करेगा, इस यूआरएल पे लेके जाएगा जहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरे इस गिट क्रेडेंशियल मैनेजर एप्लीकेशन को मुझे यहाँ पे ऑथोराइज करना है। मतलब मुझे यहाँ पे बताना है कि आई एम द ओनर ऑफ दिस गिट क्रेडेंशियल मैनेजर, सो दैट आई हैव टू ऑथोराइज दिस एप्लीकेशन। सो जब तक आप यहाँ पे ऑथोराइज गिट इकोसिस्टम पे क्लिक नहीं करेंगे, तब तक ये यहाँ पे वेट कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको कुछ डॉलर सिंबल नहीं दिख रहा। क्यों? बिकॉज करंटली इट इज वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऑथोराइज गिट इको करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो कोड है लोकल रिपोजिटरी का कोड आपके रिमोट रिपोजिटरी पे होस्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे डेमो प्रोजेक्ट में जाते हैं, चेक करते हैं, आपका सारा फाइल्स आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन, आप यहाँ पे आपके सारे फाइल्स के कंटेंट भी देख सकते
यहाँ तक समझ में आ रहा है कि आप लोकल रिपोजिटरी से कंटेंट को कैसे रिमोट रिपोजिटरी पे होस्ट कर सकते हो। उसके लिए बस दो ही तीन चीजें मेनली इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कि आपके पास एक रिमोट रिपोजिटरी होना चाहिए। आपको आपके लोकल रिपोजिटरी का रिमोट रिपोजिटरी के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, और उस कनेक्शन का यूज करके आपको आपके लोकल रिपोजिटरी के कंटेंट रिमोट रिपोजिटरी पे होस्ट करने हैं। उसके लिए गिट पुश कमांड, रिमोट कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए गिट रिमोट कमांड, गिटहब रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए आपको गिटहब पे लॉगिन करके रिपोजिटरी क्रिएट करना। नाउ अब अगर मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर गिटहब रिपोजिटरी का मुझे डॉक्यूमेंटेशन, या मैंने यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि कोई दूसरा यूजर आया, या आपके पास कोई मल्टीपल कोलैबोरेटर्स है जो कि वर्क कर रहे हैं, एंड समवन हैज मेड चेंजेस इन दिस गिटहब रिपोजिटरी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रीडमी फाइल को ऐड कर, सो नाउ लेट्स मेक दिस चेंजेस। सो यहाँ से आप आपके गिटहब रिपोजिटरी को पूरा मतलब मॉनिटर कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने एक रीडमी फाइल ऐड कर लिया। जैसे आपने रीडमी फाइल ऐड कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे ये आपको दिखा रहा है ये कंटेंट जो कि हमने रीडमी फाइल में ऐड किए थे। सो इट इज यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पज, इट इज अ मार्कडाउन फाइल। सो अब यहाँ पे आपके रिमोट रिपोजिटरी में कितने कमिट्स हुए हैं? दो कमिट्स हुए हैं। अब अगर हम हमारे लोकल रिपोजिटरी को देखते हैं, तो यहाँ पे कितने कमिट्स हुए हैं? एक ही कमिट है। और ये जो ओरिजिन मास्टर जो दिख रहा है आपको, इट इज फॉर द रिमोट रिपोजिटरी ब्रांच जो कि हमने कंटेंट पुश किए थे। दैट इज व्हाई इट इज शोइंग अस दैट दिस कमिट also refers to the GitHub repository. So अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा GitHub रिपोजिटरी है इसमें मैंने जो लेटेस्ट चेंजेस किए हैं, इसमें जो मैंने लेटेस्ट चेंजेस किए हैं, ये लेटेस्ट चेंजेस मुझे मेरे लोकल रिपोजिटरी में चाहिए। आई वांट these latest changes of GitHub repository into the local repository। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे git pull कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे कौन से कमांड का यूज करना पड़ेगा? git pull। तो git pull command is used to pull the content of remote repository into local repository, or we can say that git pull command is used to fetch the content or the latest commit of the remote repository into local repository and merge it into the local repository। मतलब GitHub repository, GitHub repository से पहले हम वो कंटेंट हमारे लोकल रिपोजिटरी में आएंगे, देन वी आर गोइंग टू मर्ज देम इनटू आवर लोकल रिपोजिटरी। इट इज द easiest way to sync our local repository with remote repository। It is the easiest way to sync our local repository with the remote repository। सो यहाँ पे अगर हम git pull कमांड का यूज करते हैं, तो git pull कमांड का यूज करते वक्त भी आपको यहाँ पे कनेक्शन की जरूरत होती है। सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द कनेक्शन, एंड देन फ्रॉम दिस कनेक्शन we need to specify the branch from which we want the code। तो यहाँ पे हमारा ब्रांच कौन सा है? मास्टर है। तो अगर हम यहाँ पे गेट पुल ओरिजिन मास्टर करेंगे, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि कितने फाइल चेंज हुए हैं, कितने इंसर्शंस हुए हैं, कौन सा फाइल आपके मतलब गिट रिपोजिटरी में ऐड हुआ है। तो वो आप पूरा यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे ls-la करेंगे, सो नाउ हियर यू कैन सी देयर इज अ रीडमी फाइल एज वेल। दिख रहा है यहाँ पे रीडमी फाइल।
अगर आप आपके पाइचाम में जाके भी देखोगे तो यहाँ पे आपको वो readme फाइल दिखेगा. You can open this readme file here. It is going to show you this preview with the source code of readme file. You can add this in your code. तो यहाँ पे आप उसको आपके हिसाब से राइट कर सकते हो. सो अब इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके आप आपका मतलब आपको एप्लीकेशन क्रिएट करना है, आपको कोई ऐप क्रिएट कर लिया, आपको फिर से वो कंटेंट ऐड करके आपके रिमोट रिपोजिटरी पे होस्ट करने हैं. सो यू कैन सिंपली डू दैट. सो यहाँ पे हम cd डेमो प्रोजेक्ट कर लिए py स्टार्ट ऐप तो डेमो ऐप. तो अब मैंने यहाँ पे सिंपली एक ऐप क्रिएट कर लिया. तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाउ इट इज गोइंग टू शो यू दिस ऐप. और अब ये ऐप में आपको दिख रहा है, ये फाइल्स जो है फिर से रेड में आपको दिख रहे हैं. ये सारे फाइल्स आपको फिर से रेड कलर में दिख रहे हैं, मतलब गिटहब इज नॉट ट्रैकिंग दिस फाइल. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन git add स्टार करेंगे. ठीक है, जैसे ही हमने git add स्टार कर लिया, अब उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, अगेन git commit -m. तो यहाँ पे अब हम हमारे डिस्क्रिप्टिव मैसेज देंगे. तो जैसे कि हमने क्रिएटेड न्यू ऐप. ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये कमिट मैसेज प्रोवाइड कर दिया है. तो जैसे हम यहाँ पे करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे init.py admin.py apps migration init.py model test views आपको दिख रहे हैं नाउ. अब हमने यहाँ पे फिर से हमारे सोर्स कोड में मॉडिफिकेशन किए हैं हमारे लोकल रिपोजिटरी में. सो अब मुझे अगेन इन कंटेंट्स को मेरे रिमोट रिपोजिटरी पे होस्ट करना है. तो मुझे अब कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा, अब ये लोकल चेंजेस को मुझे गिटहब रिपोजिटरी पे होस्ट करना है. तो पहले हमने हमारे कमिट्स को होस्ट करने के लिए हमने कौन सा कमांड यूज किया था, लोकल कमिट्स को गिटहब रिपोजिटरी पे होस्ट करने के लिए हमने git push कमांड का यूज किया था. अगेन वी आर गोइंग टू यूज द सेम कमांड टू push the content of local repository onto remote repository. So यहाँ पे git push origin master. So what it will do is it will push the latest commits of our local repository onto remote repository. तो अब अगर हम यहाँ पे फिर से इस रिपोजिटरी को रिफ्रेश करते हैं, यू विल बी एबल टू सी देयर आर 3 commits. और अगर आप डेमो प्रोजेक्ट में जाके चेक करते हो तो यहाँ पे आपको डेमो ऐप भी दिखेगा. और यहाँ पे मेन चीज कि अगर आप इन कमिट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यू विल बी एबल टू सी ऑल दीज 3 commits. इसमें अगर मैंने इस स्पेसिफिक कमिट के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपको जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स आपने इस स्पेसिफिक कमिट में ऐड किए हैं या मॉडिफाई किए हैं, वो सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे. तो आप देख सकते हो admin.py डेमो ऐप का admin.py init.py apps.py init.py of migration models.py test.py views.py. तो इसका सारा सोर्स कोड आपको यहाँ पे अवेलेबल है. एंड इवन व्हाट यू कैन डू इज you can view this file over here. You can easily modify these files. तो अगर आपको मॉडिफाई करना है सिंपली आपके रिपोजिटरी में जाके आप डेमो प्रोजेक्ट में जाके आपका जो भी फाइल आपको मॉडिफाई करना है सिंपली उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे एडिट दिस फाइल का ऑप्शन आएगा जिससे आप इस फाइल को एडिट भी कर सकते हैं. सो गिटहब पे आपको ये सारी फैसिलिटी ऑलरेडी प्रोवाइड करके दी जाती है कि जिससे आप आपके फाइल्स को न्यू फाइल्स आप वहां पे ऐड कर सकते हो, एग्जिस्टिंग फाइल को आप मॉडिफाई कर सकते हो.
समझ में आ रहा है गिटहब रिपॉजिटरी हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम उसका हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, कैसे हम उसमें कंटेंट देख सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक, मतलब जैसे आप कोई भी कमिट देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको उसका कमिट आईडी दिखेगा। तो जो भी आपने कमिट किया हुआ है, तो आप इसको आई थिंक देर इज सेटिंग्स हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है कि हम यहाँ पे हमारे जो भी कमिट्स किए हुए हैं हम उन कमिट्स को यहाँ पे देख सकते हैं, हम उनका सोर्स कोड चेक कर सकते हैं। हम किसी भी फाइल को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ न्यू फाइल, so you can do anything by using this user interface to interact with GitHub repository। और लोकल रिपॉजिटरी से अगर आपको आपके रिमोट रिपॉजिटरी के साथ इंटरेक्शन करना है, तो आपको पहले वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है। Once you establish the connection, then and then only you will be able to interact with the GitHub repository. And you have to make sure that whenever you are going to create this connection, you must create a local repository, because without local repository you won't be able to make the connection with the remote repository or GitHub repository। क्लियर है? आज की कमांड्स जो हमने देखा है, git remote, then git push, git pull, और उसके साथ साथ हमने इग्नोर फाइल क्रिएट किया था, राइट? उसके साथ साथ हमने इग्नोर फाइल क्रिएट किया था। अब इग्नोर फाइल में जो भी कंटेंट हम ऐड करते हैं, तो आपका गिट रिपॉजिटरी या गिटहब रिपॉजिटरी उन फाइल्स एंड फोल्डर्स को ट्रैक नहीं करता है। सिंपली अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ git ignore file, so whenever you want some information not to be tracked by the git repository or github repository, then you can add such files and folders into the git ignore file, so the github or git repository will not track those files। ठीक है, तो ये कमांड समझ में आ रहे हैं? So if you want, you can take the screenshot of this। So हॅलो सर। हाँ बोलिए। सर याच्या नोट्स आहेत का? आपको वो नोट्स भी मिल जाएंगे, जो भी कमांड्स है ना, वो कमांड्स के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, स्क्रॉल डाउन का। और यहाँ पे ये जो कमांड्स है, जरूरी नहीं है कि आपको ये कमांड्स हर बार इसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करने पड़े, ऐसा नहीं होता है। तो जब तक कि आप इसका प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे, तब तक आपको ये अंडरस्टैंड नहीं होने वाला है कि इसको कैसे यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और एज अ डेवलपर जब आप कंपनी में जाओगे, तो मेन जो कमांड्स आपको डेली बेसिस पे यूज करने हैं, वो है गिट ऐड, गिट कमिट,
गिट पुल, गिट पुश, ये जो चार कमांड्स है इनका सबसे ज्यादा यूज आपको करना है। बिकॉज आपके पास एक बार अगर आपने किसी रिपोजिटरी को आपके पास बना लिया, कम से कम 6 महीने तो आप उसी रिपोजिटरी के ऊपर वर्क करने वाले। तो इसलिए यही कमांड्स आपको डेली बेसिस पे करने होते हैं। मतलब जब भी आप कंपनी में जाओगे, आपको आपका वर्क स्टार्ट करना है, तो जिस ब्रांच पे आप वर्क कर रहे हो पहले आपको क्या करना होता है, रिमोट रिपोजिटरी से आपको उस ब्रांच को पहले सिंक करना होता है, मतलब गिट पुल करना होता है, उसके बाद ही आपको वर्क करना होता है। क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि किसी ने अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं या नहीं। अगर किए होंगे और उस टाइम पे अगर आपने वो गिट पुल किए बिना अगर आपने आपके कोड को पुश कर लिया, तो उस केस में वहां पे आपको एरर्स आए, वो कोड आपका डायरेक्टली पुश नहीं होगा। इसलिए जब भी आपको कोई भी कंटेंट पुश करने, उससे पहले, मॉडिफिकेशन से पहले, यू हैव टू मेक श्योर दैट योर लोकल रिपोजिटरी इज ऑलरेडी इन सिंक विथ रिमोट रिपोजिटरी। ठीक है। तो गिटहब रिपोजिटरी कैसे दिखेगा आपको, इसका भी अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट तो आप ये भी ले सकते हो। एंड यू ऑल नो हाउ टू यूज द पाइथन, राइट। ठीक है। तो फिर आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। विल सी यू टुमारो। बाय बाय।